So the next question is कि अगर marriages से sex disappear हो जाए Hmm. तो what is then left? Okay, sex is part of a marriage. It's not the whole marriage. हाँ. तो वो sex अगर disappear होता है, emotions फिर भी है. Love is still there. A lot of times you have kids also in the marriage, which is there. So sex वो एक बहुत छोटा part होता है. बाकी सारी चीज़ें हमेशा रहती ही है. अगर वो disappear हो गया, still marriage can go on. Would people stay in a half broken marriage अगर उनके अगर उनके बच्चे ना हो, kids ना हो, तो people will still be So not always, but हमेशा नहीं रहेंगे, पर इनिशियली वो रहते हैं कि दे कीप ऑन ट्राइंग कि नहीं हम वर्कआउट करना चाहते हैं ये मैरिज को, ये वर्क करना चाहते हैं, ये वर्क करना चाहते हैं. जब तक सामने वाला पर्सन कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप ले ले कि अभी जो पर्सन वर्क करने की ट्राई कर रहा है वो अभी गिव अप कर दे. अदरवाइज पीपल स्टे इन मैरिज. पीपल जल्दी से नहीं लेते वो डाइवोर्स. तो क्या रीजन मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कैन बी अ रीजन? No, they love the other person sometimes. So financial dependency is Yes. also a good reason to stay in a marriage, right? Yes, a lot of time. Financial dependency, or you can say status, name, what Social status, yes. social status, yes. What comes with the marriage, because there's a society जहाँ पे आप introduce गए हो, तो अगर वो introduce हुए हो society में, तो you don't want to take away that introduction or वो society आप पे trust नहीं करेगी बाद में. बट अगर नहीं है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर people may choose for it, but इतना जल्दी नहीं होता है. Okay. They want to work on the marriage. They still want to work on the marriage. They want to try and make it work. But if you say society and वो status, वो बहुत ज़्यादा important रहता है. फिर financial dependency, independency नहीं आती है पिक्चर. Okay. अगर सोसाइटी के बारे में सोचना छोड़ दो नहीं छोड़ेंगे तो या they will go for divorce. Because आजकल divorce भी काफ़ी accepting हो गया है. Okay. If you see in business life, people will get married where there is it is a loveless marriage. Or you can say there's no meaning, it's just a name for the society and it's a contract kind of a marriage. Business marriage. Business के लिए आपकी शादी हो रही है convenience के लिए और कुछ नहीं है उसका reason. Okay. ठीक है. तो the next question is अगर if the person is fantasizing some other woman or a man in her life marriage में रहकर, तो is that a betrayal? Like is that also cheating? या it's just a way of psychological coping mechanism to just के marriage चलती रहे? Correct. So now इसमें 2-3 चीज़ें आती है. सबसे पहली चीज़ betrayal अगर वो किसी और को imagine करे like a specific person they know about, then it can be because they might have feelings for them. Okay. And वो अगर तुम्हें अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स है तो वो genuinely नहीं होता है. But then sometimes if you see there are a lot of other ways also people have fantasy or imagination as well. That we don't call it as betrayal. Okay. So it depends. कि आपकी fantasy किसके ऊपर directed है. Is it a specific person that you are thinking about? Or is it generally you're fantasizing anybody or you're thinking of a character or something like that? Okay. Because that person doesn't exist. You don't have feelings for that person. हाँ. But अगर कोई है जान पहचान का अगर तो फिर then it's a problem. हाँ. Feelings वहाँ पे matter. But वो accept करना like वो accept तो नहीं करेगा ना कोई कि Exactly. I have that. तो वो उनका marriage तो वो it's a kind of a betrayal. I won't say it's completely a betrayal, but it's a kind of a betrayal. Kind of a betrayal. Okay. Yeah, and psychological. तो वो सब नहीं करना चाहिए. Like I mean, yeah. See, do not imagine one specific person whom you know. Okay. Fantasies आजकल है. हाँ. ऐसा नहीं कि fantasies हैं. There are books, there are cartoons, there are movies. Lot of things are there. Lot of people imagine in that. And enjoy that also. That is not a betrayal. That is a way of feeling those things. Now, in this, very important कि अगर आपकी जो fantasies है, try and discuss it with your partner. Okay. If you discuss it, there are high possibilities you can achieve those fantasies into reality. Okay. So वो चीज़ें हो सकती है. Possibility है. There are people to help out also. Like there are therapists also. जो help करते हैं इन सब चीज़ों में. So yes, you can work that out.
एंड टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म, तो अगर वो इनसिक्योरिटी से आ रहा है तो वो एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है. ओके. सो इनसिक्योरिटी अबाउट सेल्फ इमेज के बारे में, अगर वो एक इनसिक्योरिटी है खुद की कि दैट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द अदर पर्सन, तो वो एक कोपिंग मैकेनिज्म एज पीपल टेंड टू यूज इट. ओके. सो इट कैन बी बोथ. वी नीड टू नो द रियल रीजन बिहाइंड इट. ओके. जब शादी हो जाती है एंड दे बोथ आर अर्निंग इक्वली, ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद में द हस्बैंड और द वाइफ स्टार्ट्स अर्निंग मोर देन द अदर पर्सन, तो डज दैट चेंज अ रिलेशनशिप इन अ वे, लाइक एकदम से कुछ फर्क आता है अथॉरिटी वाइज के मैं ज्यादा कमा रहा हूँ या मैं ज्यादा कमा रही हूँ तो आई विल हैव मोर से ऑन थिंग्स, डिसीजंस, हाउस डिसीजन, जो भी डिसीजन हम लेते हैं. करेक्ट. सो ये है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. हर रिलेशनशिप में वैसा नहीं होता है. ओके. बट काफ़ी रिलेशनशिप में है ना, उनके बिहेवियर में ये चेंजेस आने लगता है. ओके. द पर्सन हु इज अर्निंग मोर, हाँ. उनके बिहेवियर में आने लगता है दैट यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ. आई एम ट्राइंग सो हार्ड, यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ. यू आर ट्राइंग बट नॉट हार्ड इनफ. एंड ये बहुत अननोइंगली आने लगता है बिहेवियर चेंज, बिकॉज दे एक्चुअली स्टार्ट कंसिडरिंग इट एज मोर ओके. themselves better. Not necessarily हर बार हो. Lot of times it doesn't happen, but sometimes it does ओके. in a ऑलराइट. relationship. तो उसमें क्या मतलब हाउ टू डील विद दैट? So उसके साथ डील करने का सिंपल तरीका है that when a person is earning more, वो पर्सन को they have to start reflecting more on their behavior. Okay. And the other person has to start pointing out on their behavior. Because वो behavioral changes है. बट उससे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, लाइक. हाँ, लड़ाई होगी, बट ये एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन में आ जाता है. ये कम्युनिकेट करना जरूरी है. अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो इशू क्रिएट होगा. अभी नहीं, बाद में होगा, और बाद में ज्यादा बड़ी लड़ाई होगी जो रिलेशनशिप टूटने पे आ जाएगी. तो जब इनिशियल स्टेज पे ही जब ये होता है तो ये दिखाना जरूरी है और ये ऑब्जर्व करना भी जरूरी है, बिकॉज हमें रियलाइज नहीं होता है जब वो बिहेवियर चेंज होता है. ओके. जब हमें कोई रियलाइज करवाता है तो हम शायद उसके ऊपर सोचने भी लगे. तो ये एकदम इनिशियल स्टेज पे बताना जरूरी है. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, जब पैसे कमा रहे हो, पैसा एक सेंटर नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप का. आपके रिलेशनशिप का सेंटर दूसरी चीज है. हम काम करते हैं अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, तो पर हमारी लाइफ ही काम बन गई है. बट एक वो फ्रीडम आ जाता है ना कि तुम यू कैन स्पेंड हाउ एवर यू वांट टू, तो वो एक फ्रीडम आ जाता है. तो फिर वो ऐसा रहता है कि दूसरे को का मतलब ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोच रहा है. इट्स माय मनी, आई एम अर्निंग, तो आई कैन फ्लॉन्ट इट और स्पेंड इट. करेक्ट. ये आता है if there is no planning. But if they in a relationship, if couple plans their house, family, everything, अगर उनका प्लान है कि अभी घर है, ये घर है, we want to move to a bigger house. So if one person is earning well, तो they can save more for a bigger house. हाँ, that is वो तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना कि तुम्हें गोल्स कुछ है ऐसे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए वो सब. So वो प्लानिंग रहेगी. Always there has to be a little bit of family में कुछ तो होनी चाहिए हमेशा. हाँ, कुछ रहेगी तो वो आने के चांसेस कम है. हाँ, तो कुछ ना कुछ प्लान करके रखो कि ऐसा ऐसा करना है, फाइनेंशियली वी हैव टू अचीव दिस थिंग्स. तो फिर ये सब चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती है. यस. एंड जैसे वो गोल अचीव होने लगे, हायर इट. हाँ, फिर उसको लेवल अप करो. यस. ठीक है. अच्छा, मैरिज में व्हेन इट कम्स टू लॉयल्टी, लॉयल्टी इज fear driven or is it like love driven? जैसे for example, two people are in a relationship, in a marriage, and loyalty का सिर्फ यही रीजन है कि आई एम इन लव विद दैट पर्सन, ठीक है, और दूसरा एक रीजन हो सकता है कि एक मुझे एक डर है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती. तो व्हाट इज दैट लाइक? सो दैट इज नॉट लॉयल्टी. लॉयल्टी इज ऑलवेज चॉइस ड्रिवन. ओके. इट्स नीदर लव नॉर फियर. अभी वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप कितने लॉयल हो. आप मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं लॉयल्टी कैसे दिखाऊं आपको. ओके. एंड चीटिंग इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू सेक्स. इट कैन बी टू एनीथिंग एज वेल, लाइक अबाउट spending time into something else but not giving enough attention to the partner and giving attention to others.
ओके जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल, अगर आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग भी है, अगर आपने सुना होगा, मेल बेस्ट फ्रेंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड होती है हाँ हाँ पार्टनर्स की। पार्टनर एंड if your partner is paying more attention to their other partners than you, then that is also called as disloyalty. ओके It's not only this female friendship or male friendship, but also to other people. हम्म If other person is more important than your partner to you, then what are you doing in that marriage? One very simple. ये चीज़ बहुत ही अनकॉमन है, people don't do it and people very openly accepted कि नहीं वो लोग ज़्यादा important है, ये चीज़ ज़्यादा important है, इसमें तो बाद में टाइम देगा तो मुझे चलेगा। ये नहीं चलना चाहिए। चल जाता है हम एक्सेप्ट कर लेते बिकॉज इट्स लव, बट ये नहीं चलना चाहिए। ओके दैट्स द पॉइंट। ओके एंड वो इंसान की चॉइस होती है। अगर सामने वाला मेरी प्रायोरिटी है, आई एम लॉयल टू यू, मैं करूँगी, मुझे जो करना है वो करूँगी। दैट वेयर ऑल्सो कम्स वेयर when we were talking about relationships, you remember loving two people at one time. हाँ If you are loyal enough to both of them, if of course वहाँ पे लॉयल्टी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आ जाती है, बट अगर हम वो इनफ अफेक्शन दिखाते तो पर्सन फील इज लॉयल, द पर्सन इज लॉयल टू मी, लव्स मी इनफ। ओके बिकॉज पहले के ज़माने में होती थी 3-4 रानियाँ होती थी, या एक वेमेन के शी यूज्ड टू हैव 2-3 हस्बैंड्स, बट शी यूज्ड टू बी लॉयल टू देम। अगर इफ शी इज गेटिंग इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, बिकॉज पहले के ज़माने में फॉर द किंगडम किंग्स यूज्ड टू गेट मैरिड and princesses used to get married for the kingdom. to So, many men Yeah, वो हुआ है पहले के ज़माने में. It is not well known about, Yeah. but there are things that has happened. So ये सारी चीज़ें क्यों होती है? Loyalty for the kingdom. Loyalty for the person maybe not just sexually, but है अभी kingdom के लिए कर रहे हैं. So we also support them, be there with them. ओके ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इमोशनल मैनिपुलेशन एक मैरिज के अंदर कितना ज़्यादा इमोशनली आप मैनिपुलेट करते हो पार्टनर को इज दिस अ थिंग लाइक ये Yes, होता है yes. जेन्युइनली और तो उसका क्या हाउ वी डील विद दैट So emotional manipulation बहुत होता है. मतलब किस किस तरह का होता है कैन यू गिव सम एग्जांपल्स Okay, so emotional manipulation is a lot of times जहाँ पे एक पर्सन कुछ चीज़ करने में लिए कंफर्टेबल नहीं है. It can be anything like going out or something. You keep on convincing that person till that person gives in. That is manipulation. या अगर जो बहुत कॉमनली देखा जाता है कि अगर हमारे बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है तो आई विल गिल्ट ट्रिप यू. गिल्ट ट्रिपिंग इज ऑल्सो इमोशनल मैनिपुलेशन. ओके वेदर मेरी गलती है, वेदर आपकी गलती है या नहीं, आई स्टार्ट गिल्ट ट्रिपिंग यू अबाउट ओल्ड थिंग्स एंड डूइंग दोज थिंग्स. दैट इज ऑल्सो इमोशनल मैनिपुलेशन जो बहुत कॉमनली होता है. पीपल डोंट रियलाइज व्हेन दे आर डूइंग इट. ओके लॉट ऑफ टाइम इट कम्स फ्रॉम हर्ट एज वेल, बट देन इट इज देयर. एंड ये काफ़ी बार मैरिजेस में होता है, जस्ट यू नो हैव अ से इन समथिंग, या कुछ बातें मनवाने के लिए कि पता है सामने वाला पर्सन इस चीज़ को तो मानेगा ही नहीं, तो उसको ऐसे बोल के हम मनवा सकते हैं. गिल्ट ट्रिप करेंगे तो दैट पर्सन विल गिव इन. ओके सो दैट हाउ इट गोज इन अ मैरिज और इन अ रिलेशनशिप. तो उसको डील कैसे कर सकते हैं तो जब भी सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है, यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड एट दैट टाइम. टेक योर टाइम, थिंक ओवर इट. जो उसने बोला है वो एक्चुअली इस सिचुएशन से रिलेटेड है या नहीं. वो पास की सिचुएशन से रिलेटेड है, हम उसको बाद में डील करेंगे, हम इस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे. सो टॉक अबाउट द प्रेजेंट, डू नॉट टॉक अबाउट द पास्ट और फ्यूचर. तो वो गिल्ट ट्रिपिंग नहीं होगा. जब वो गिल्ट ट्रिपिंग नहीं होगा, देन यू विल स्टार्ट डीलिंग विद इट लॉजिकली. या तो उस टाइम पे बात ही ना करो और फिर कुछ टाइम के बाद में डिसीजन अपने आप ले लो लाइक फिर वो कम्युनिकेशन आई थिंक वो इजी नहीं हो जाएगा. उसको दूसरे पार्टनर को वो समझ जाएगा कि मैं तो बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट वहाँ से कुछ हो नहीं रहा है और डिसीजन जो जिस चीज़ के लिए मैनिपुलेट कर रहे थे वो डिसीजन तो उसने अपना ही ले लिया. ओके, वो डिसीजन कभी कभार वैसे नहीं होता है. ओके अभी जहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व है वहाँ पे उन्होंने डिसीजन ले लिया तो हो गया, पर जहाँ पे सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व है कुछ चीज़ करने में, तो वहाँ पे वो डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है. सो
कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट ही ना करो। इस कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा गिल्ट ट्रिप करेंगे बाद में। दे आर नॉट गोइंग टू लीव दैट सिचुएशन, वो दे आर गोइंग टू मैनिपुलेट यू, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, दे आर नॉट गोइंग टू लीव इट। तो वो बाद में अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो और आपको गिल्ट ट्रिप करेंगे दैट यू हैव नो वैल्यू ऑफ माई सेल्फ, मैं तुम्हारे साथ कर क्या रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, आई एम लाइक दिस ओनली, सबने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम भी वही कर रहे हो। दे स्टार्ट पुटिंग यू ऑन दोज काइंड ऑफ गिल्ट ट्रिप्स। तो वो चीज़ कर सकते हैं, बट जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं ये चीज़ करनी, फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एनीबडी यू कैन से that you can take a decision and you can take your call, okay, and you can take a step back. और अगर सिर्फ दो लोगों में वो बात है, जब भी ये कॉन्वर्सेशन हो, गिल्ट ट्रिपिंग जब भी स्टार्ट हो, वॉक अवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन और उनको सिंपली एक चीज़ बोलो कि हम ये टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे. When calm down and then we'll talk about this topic. All right. I understand you are hurt from the past, but I need you to calm down right now. We need to talk about what is related to now, not about the past. Okay. ये चीज़ बोल के, that's where you stop guilt tripping, that's where you stop their manipulation and talk about the situation that is right. Okay. इसमें एक और एक चीज़ ये होती है कि सामने वाला पर्सन फैक्ट जो होता है उसको डिनाई कर देता है, and they try to prove you that you are whatever you are saying is lie. And then you end up growing, no, whatever I'm saying is right, I'm not crazy, मैं पागल नहीं हूँ, यही है, ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था. मत करो. सामने वाले नहीं मान रहा है ना, छोड़ दो उसको वहीं पे. If that person says that you are lying, ठीक है, it's your choice, whatever you want to believe. Your belief does not change the truth. तो अभी जैसे मैरिजेस में देयर आर टू फैमिलीज, एक हमारी खुद की फैमिली होती है और एक पार्टनर्स फैमिली है. अब पार्टनर की फैमिली के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो हाउ डू वी डील विद दैट? लाइक फिर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है समटाइम्स, यू नो, कोई लाइक मदर इन लॉ है जैसे, वो कुछ बोल रही हैं और वो कुछ और कम्युनिकेट हो रहा है, तो वो सब चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए? लाइक अगर कोई कनेक्ट ही नहीं है, अगर आपके पार्टनर की फैमिली के साथ देयर इज नो कनेक्ट. करेक्ट. सो इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं. अगर हस्बैंड अगर एक वाइफ है जिसको इन लॉज की फैमिली के साथ इश्यूज हो रहा है, तो हस्बैंड के साथ अगर वो इन्वॉल्व होकर करिए तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस. हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन. अब जिसके साथ भी कम्युनिकेट करें. ओके. सबसे पहली चीज़, अगर मुझे मेरी मदर इन लॉ के साथ कम्युनिकेट करना है, आई विल नॉट आस्क माई हस्बैंड और माई फादर इन लॉ टू कम्युनिकेट. आई directly communicate and change the mode maybe of the communication. Okay. One. और क्योंकि वहाँ पे मैसेज मिसइंटरप्रेट होने के चांसेस है, और अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी मैसेज मिसइंटरप्रेट हो रहा है, यू नीड टू हैव, लाइक आई सेड, चेंजिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल हेल्प अ लॉट. मैंने ये बोला था, इसका मतलब इन्होंने ये समझा है, इसमें मेरी फॉल्ट कैसे है. वेरी क्लियर. एंड ऐसा लग रहा है तो अकेले अकेले में कम्युनिकेशन मत करो, हैव इट इन द ग्रुप. सब है वहाँ पे, सामने सामने बात करो. सो ये प्रूविंग का क्वेश्चन ही नहीं आता है कि हाँ ये सही बोल, इसने सही बोला, उसने गलत बोला. देन देयर बिकम्स अ लेस, वहाँ पे सीन क्रिएट करने का, सिनेरियो, अलग सिनेरियो क्रिएट करने का, वो इशू डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ओके. एंड अगर नहीं ही करना है इंटरैक्ट, देन इट्स ऑल्सो फाइन, दैट्स अ चॉइस. बिकॉज वो रिलेशनशिप अगर फिर और टॉक्सिक ही होने वाला है, मैरिज और टॉक्सिक होने वाला है, then it's better to take a step back and have communication only when required. Okay. So if in a relationship, एक शादी के अंदर, अब the husband has, for example, the husband has, you know, failed financially. और मतलब अभी उसके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, एंड ही इज़, और लेकिन वाइफ है एंड देयर आर, यू नो, किड्स आर देयर, तो वो सब चीज़ों को डील कैसे कर सकता है वो? लाइक हाउ कैन ही डील विद दैट? ओके. सी, एक शादी में है ना, बिकॉज एक वो होता है ना कि पार्टनर की नज़र में यू आर लाइक अ लिटिल, थोड़ा सा कि यार सोशली तो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ओनली यू आर द वन हु इज जस्ट, यू नो, फाइनेंशियली यू हैव फेल्ड इन अ वे, कुछ बिजनेस फेल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो हाउ टू डील विद दैट? ओके. सबसे पहली चीज़, हस्बैंड अगर वो फेल हुआ है
तो उसे ये समझना ज़रूरी है कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या उसकी फाइनेंशियल अर्निंग डज नॉट डिफाइन हिम, हम्म, दैट्स नॉट हिज डेफिनेशन, दैट्स नॉट हु ही इज। हम्म, कि हाँ ये वी डोंट, हम बाहर जाके ऐसे नहीं बोलते हाँ ये इंसान 2 लाख कमाता है इसके स्टेटस ये है, ये हाँ, इंसान 4 लाख कमाता है इसका स्टेटस ये है, ये इंसान 2 करोड़ कमाता है उसका स्टेटस ये है। हम्म, हम ये चीज़ें नहीं बोलते बाहर जाके, हम्म, हम वैसे भी डिफाइन नहीं करते। हाँ, बिज़नेस रिलेशन में वो सोसाइटी में बिज़नेस की वजह से या काम की वजह से आपका स्टेटस होता है, पर फैमिली में वैसे आपका स्टेटस नहीं होता। ओके, अगर आप एक शादी में हम्म, हस्बैंड कम कमा रहा है बट ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, हम्म, इट्स फाइन। ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग व्हाटएवर ही कैन एंड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। एंड फाइनेंशियल क्या है, आज है कल नहीं है, हम्म, फिर परसों है, आज नहीं। इफ ही हैज़ लॉस्ट इट, ही कैन अर्न इट अगेन। ओके, If it is never there and he has no plans to do it, then and but he's saying he has plans, then that's a problem ओके, because action और words contradict कर रहे हैं, हम्म, वो प्रॉब्लम है। दैट्स द पॉइंट कि उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि आज अगर मैंने नहीं कमाया है फाइनेंशियली तो इट्स ओके, आई मे अर्न टुमारो, आई मे अर्न आफ्टर सम टाइम। दैट सपोर्ट वाइफ इज अर्निंग, शी इज गिविंग दैट सपोर्ट, दैट्स गुड टू गो। सी हमारे ना सोसाइटी का रूल है और ये मेन के ऊपर ना ये बहुत प्रेशर डाला हुआ है। मेन आर सपोज टू बी द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द हाउस। वाइफ अर्न करे नहीं करे चलेगा, मेन तो हर करना ही चाहिए। व्हाई? देयर आर लॉट ऑफ मेन हु लाइक टू बी एट हाउस एंड डोंट वांट टू अर्न। वो घर का काम करते हैं, रोल्स आर रिवर्स्ड एंड दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो उनके पर्सन उनकी लाइक आई सेड फाइनेंशियल इज नॉट द पर्सनालिटी, उनको डिफाइन नहीं करता है। yeah, इट्स ओके इफ मेन डजंट अर्न, इट्स ओके इफ वाइफ wants to earn. It's all about the ambition just to provide the family. If men keeps on earning just to provide the family, he'll be frustrated और वो सारा फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे निकलेगा एंड एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और अलग। बट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ना, ऐसे तो मैंने कभी केसेस देखे ही नहीं है वेयर द यू नो वाइफ इज अर्निंग और husband is doing हाँ, housework, so divide the responsibilities. हाँ, Husband can earn only as much as he wants to minimum and wife is ambitious, she can earn more. नहीं बट ये वाला जो मेंटालिटी है तो ये कैसे एक नॉर्मल कैसे होगी, लाइक व्हेन द So, हस्बैंड इज नॉट correct. अर्निंग, तो इसको ये कैसे लाइक नॉर्मल हो सकती है कभी, या इट्स हो जस्ट दैट सकती है, डेफिनेटली हो अभी सकती के है। टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अभी नहीं है हाँ, बट फ्यूचर में डेफिनेटली हो सकती है। बस खाली आपके फाइनेंशियल स्टेटस को आपका डेफिनेशन बनाना बंद कर दीजिए, ओके, ये हो जाएगा। बिकॉज अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, राइट नाउ ऑल्सो आई हैव सीन गर्ल्स हु आर लाइक कि माई हस्बैंड विल अर्न तभी मैं शादी करूंगी। वहाँ पे लव का कोई एंगल नहीं है, लव है लव नहीं है, दैट्स कि माई हस्बैंड शुड बी अर्निंग दिस मच, 5 लाख 10 लाख महीने में इतना कमाने वाला होना चाहिए, एंड देन ओनली आई विल गेट सेटल डाउन, वरना कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, so that means this women are not ambitious for themselves. They need money to do other things. ओके, और उसमें see, having money is not a wrong thing. Men earning and wife demanding for it, it is not a wrong thing. But अगर हम एक रिलेशन, अगर शादी हो जाती है उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं ना, and leaving that person for financial issues, that's a wrong thing. Of course, any girl will ask for a well settled guy, because अगर वो इंसान सेटल्ड नहीं है लाइफ में, ठीक है, फाइनेंशियल एक एरिया है जहाँ पे वो बहुत क्लियरली दिख के आता है कि हाँ भाई खुद इतना कमा रहा है, खुद का घर है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन द पॉइंट ऑफ क्राइसिस। बट अगर वो पर्सन नहीं कर रहा, दैट मीन्स दैट पर्सन इज डिपेंडेंट, तो फुल लाइफ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट। फ्यूचर में किड्स भी होंगे या ये भी होगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट कि भाई तुम करो तुम करो। हाउ मच इज दैट गर्ल गोइंग टू डू? और अभी जब भी शादी होती है, इफ द मैन इज फाइनेंशियली वेल, डूइंग वेल, अर्निंग वेल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी डिवाइड हो जाती है, बिकॉज वुमेन इज द वन टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसके हिसाब से वुमेन इज द वन टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, डूइंग द जॉब। उनको सबसे पहले बोला जाता है कि बच्चों पे ध्यान दो, जॉब छोड़ दो। कितनी बार ऐसा मुझे बताओ, आपने ये देखा है कि एक घर है, आजकल थोड़ा कॉमन हो गया, बट यू टेल मी, इफ यू आर इन द हाउस एंड योर मॉम इज देयर इन द सेम हाउस, she'll tell you now go and make rotis for me. How often that has happened with you? With me,
like never. नेवर. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि जब तुम्हारी वाइफ आ जाएगी एंड शी इज टायर्ड, शी इज कम फ्रॉम ऑफिस, शी इज टायर्ड एंड यू आर मेकिंग रोटीज फॉर हर, गरम गरम बना के दे रहे हो, पॉसिबिलिटी बहुत कम है. नहीं बट अगर मन करे तो like obviously people Correct. cook. अगर मेरा भी कभी ऐसा लगता है कि आज Yes. बनाना है तो बना लेते हैं, लेकिन Correct. बट वो अंदर से आना चाहिए ना, like to do like वैसे भी एक बार आ जाए, दो बार आ जाए डिफरेंट थिंग, और रोज आना that is a very different thing. Exactly. And every day your wife is coming from office और every day आप उसको गरम रोटी बना के दोगे, your mom will only not accept. Even if you want to do, your mom is not going to accept it. तो ये वहाँ पे भी समझाना जरूरी है. Okay. Do you think it is a possibility that if you get married and you have a wife, she's working and she's coming say 10 o'clock and you are at home by 6 o'clock, 7 o'clock, then you make hot rotis for her and give her every day? नहीं, hot तो मुश्किल है. I eat by 7:30 तो मैं तब बना के रख सकता हूँ. Exactly, that's the point. But ये expected है वाइफ से कि हाँ मेरे बेटे को गरम गरम रोटी आनी चाहिए. नहीं बट वो भी चेंज है, इट्स नॉट देयर. Of course it is हर changed. जगह पे नहीं है ऐसा, कभी कभी आई थिंक थोड़ा सा भी टाइम. Exactly, that's what I'm saying कि people are changing, husband and wife are changing, mothers, parents, like अरे वो अभी इतना काम करके आया है मेरा बेचारा बेटा, उसको गरम रोटी नहीं खिला सकती दूध. Okay. ये पेरेंट्स की बात हो गई. बट इफ हाँ. वी टॉक अबाउट लाइक आई वाज सेइंग कि फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता है, उनका एक डेफिनेशन नहीं होता. हाँ, पर्सन वेल सेटल्ड होना चाहिए, उसे ये पता चलता है कि दैट पर्सन इज रेडी टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ, नॉट अ वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एक मैरिज में दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक की नहीं होती है. दैट्स द पॉइंट. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सेक्सुअल केमिस्ट्री इन हस्बैंड एंड वाइफ. कि ये why does sexual chemistry fade away and why husband and wife are not able to accept it, or one of them वो accept क्यों नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है, like why does that happen? So as we grow, of course hormonal changes होते हैं, that is one part. But नहीं, ये concept है कि शादी के बाद then it's happily ever after. उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को पता नहीं है. One. और शादी के बाद ना लोगों को बोलता है कि अभी क्या है, अभी कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, वी कैन लिव आवर लाइफ द वे वी वर लिविंग पहले. तो काफी बार इट इज नॉट देयर. समटाइम्स यू जस्ट फील यू हैव इट, देयर इज नो कम्युनिकेशन अबाउट दिस, बिकॉज वो पहले से काफी टैबू रहा है. एंड काफी बार लोगों को शर्म भी आती है बात करने के लिए, बिकॉज दे आर बीइंग जज्ड फॉर इट. व्हेन दे आस्क फॉर इट, दे आर बीइंग जज्ड फॉर इट. सो वो होता है, एंड धीरे धीरे then it starts fading because you know the other person is going to judge you or somebody else is going to judge you for that. You will stop asking for it. So that's how it fades. It's everyday's job. जैसे मैंने आपको बताया, you go on date, you stay together, you will feel that. No, that will come into the picture. It's everyday job. वो आपको रोज वो अब जैसे dating phase में रहते हो, आपको रोज वो phase में रहना पड़ेगा. Of course with lot of more maturity. बट वो फेज आउट नहीं होना चाहिए. Okay. और वो फेज आउट हो गया तो सेक्सुअल केमिस्ट्री विल आल्सो फेड. Okay. नहीं बट अगर सिर्फ सेक्सुअल केमिस्ट्री फेड हो रही है, लाइक देयर इज नो सेक्स हैपनिंग नाउ, तो फिर उसको कैसे डील करना चाहिए, लाइक ऐसे जैसे लाइक टॉक अबाउट इट. हाँ, कम्युनिकेशन. उसको डील करने का बहुत अच्छा तरीका ये हो जाता है कि अगर आप उसके बारे में बात करोगे दैट यू नीड अदर one person doesn't need it, other person needs it. हाँ, वही होता है यूजुअली. कॉन्फ्लिक्ट तो वही है ना कि if one person is saying yes and the other person is saying no. So talk about it. Come on the middle ground. There are chances that you can come on middle ground. Okay. नहीं है तो बोल clearly. ये communicate नहीं करते because of being judged. और some people get कि ये same चीज है, I get bored. We need changes. But they don't talk about it. फ्रेंड से जाके बात करेंगे, किसी और से जाके बात करेंगे, बट जिससे बात करनी उससे बात नहीं करेंगे. Okay, so ठीक है. Then again, love only. We'll talk about love only. कि how long does love last? Like is there? I'm sure कोई नंबर नहीं है उसका, but एक regular couple के बीच में, like how long does love last? If you're working on it every day, then it's forever. Okay. Till you die. But अगर if you're not working on it every day and you're taking the other person for granted, it stays, but then relationship doesn't stay anymore. तो वो love का कुछ नहीं कर सकता. Okay. Love can fade away,
एज यू ग्रो. बट आई फील लव डज फेड अवे एट अ पॉइंट. मतलब एक किसी के साथ में तुम रह रहे हो इतने साल, यू हैव बीन, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार बस अब क्या. नहीं, नॉट जनरली ऐसा नहीं होता है. ऐसा हो जाता है कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट रिलेशनशिप, यू फील दैट लव, यू फील दैट इमोशनल कनेक्ट. जैसे जैसे आपने उसके ऊपर वर्क करना बंद कर दिया, इवन आफ्टर मैरिज, अगर आपने उसके ऊपर वर्क करना बंद कर दिया ना, दैट लव स्टार्ट्स फेडिंग अवे. ओके. That feeling start fading away because you take the other person for granted. So let's talk about sexual faking. अभी marriages में I think this is a very normal thing. I think that, मुझे पता नहीं कि how it is, but why do people do that? Sexual relationships ना हमेशा fake नहीं होते हैं. कभी कभार होते हैं people do it for love or people just want that marriage status like that. That is very rare. There are, because now it is very openly available. सबके लिए है. There are other things also. Open relationship है, casual relationship. तो फिर वो फेक करने की अभी ज़रूरत कम हो गई है. बट हाँ, वो फेक कर रहे हैं टू सस्टेन इन द मैरिज. तो लाइक व्हाट इफ द अदर पर्सन गेट्स टू नो, जब पता चल जाए तो फिर तो अदर पर्सन मे फील बिट्रियल कि अरे नहीं था तो बता देना था, इतना कंफर्ट लेवल भी नहीं है, क्या है. तभी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं मैरिज में, बिकॉज वहाँ पे डिस्ट्रस्ट या ऐसा फील होता है कि व्हाट इफ आई अगेन डू इट, अनदर पर्सन डज नॉट शेयर इट विद मी. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेट करें. अगर वो लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम का कभी सोल्यूशन ही नहीं आएगा. द प्रॉब्लम इज द पर्सन डज नॉट वांट एंड अदर पर्सन वांट्स. व्हेन जिसको चाहिए उसको पता है कि सामने वाले को नहीं चाहिए, फिर भी दे आर आस्किंग फॉर इट, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर उनको पता ही नहीं है तो उनको लगेगा कि उनका जो पूरा रिलेशनशिप था इट वाज फेक. अगर वो ये चीज़ फेक कर सकते तो बाकी सारी चीज़ें भी फेक कर सकते हैं. सो द अदर पर्सन वाज नेवर इन लव विद देम. सो कम्युनिकेशन इज समथिंग जो हर जगह पे आ ही रहा है. इम्पोर्टेंट. तो कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेशन ही सब कुछ है. अगर देयर इज नो कम्युनिकेशन, आई डोंट थिंक एनी ऑफ द रिलेशनशिप कैन सर्वाइव. एब्सोल्युटली. एंड अनकंफर्टेबल होते हैं. चेंज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसा लग रहा है कि सामने वाले से बात करके ऐसा लग रहा है दीवार पे सर हम टकरा रहे हैं. ठीक है, मोड चेंज कर दो कम्युनिकेशन का. कभी लिख के दे दो, कभी मैसेज कर दो, कभी कोई और तरीके से बात कर दो. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज. यू जस्ट डोंट हैव टू यूज कि नहीं मैं ऐसे ही बात करूंगी. डम शरास खेल लो कभी. That is also a way of communication. Because वहाँ पे then you start thinking more logically and other person also understands logically. Verbal communication में क्या काफ़ी emotions भी involved हो जाते हैं. तो वो emotions को उतने emotionally देखेंगे ना तो हम react ही नहीं कर पाएंगे properly. कभी कभार उसमें थोड़ा logic डालना ज़रूरी है. Okay. Okay. तो अभी जैसे we are talking about sexual relationships. तो अभी when a couple becomes a parent, तो फिर उसमें जो सेक्सुअल केमिस्ट्री फेड हो जाती है एंड ऑब्वियसली वो तो हो ही जाती होगी लाइक फॉर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ किड्स एंड एवरीथिंग. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लाइक द majorly the reason behind them is hormonal changes. Okay. Women, like they have given birth, they go through a lot of hormonal changes at that time. They don't know actually what they need. Because उनके hormones इतने frequently change होते हैं. And men also go through a lot of hormonal changes as well because he's become a father. Emotional changes काफ़ी आते हैं. So they need to actually, after giving birth, after a while, they need to spend some time together to rekindle that life, sexual relationship of that. And then after that, they do not have enough time also because a small baby demands the most of your time. If you're going to work, you come back from work, the baby is demanding your time. You want to spend time with the child because you feel guilty of not spending time with the child and you were working. और फिर ये भी हो जाता है काफ़ी बार कि जब स्लीपलेस नाइट्स होती है हमारी, बच्चे बहुत ये रोते हैं रात को, तो हम रात को जागते रहते हैं. So whatever time you get, you catch up on your sleep rather than getting intimate. So give it time. Don't expect it तुरंत. थोड़ा टाइम दो एंड जितना बने उतना. ऑफ कोर्स बेबी है, छोटा है, बट टेक ब्रेक्स. ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाहर चले जाओ. एटलीस्ट 2-3 days ब्रेक्स यू कैन टेक.
मे बी एटलीस्ट 1 day break you can take and just spend time with each other. Go out on a date. One dinner you can go out with each other without the child. Do that for the relationship. हाँ, एक मैरिज को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं हम? सो अगर मैरिज फॉलिंग अपार्ट है और नहीं जम रहा है या कुछ ऐसे इशू, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, इफ वी आर एक्चुअली, एक तो इंटेंशन दोनों लोगों का कि उनको रिपेयर करना है, उनको वर्क करना है, और अगर उनको मैरिज ब्रेक करना है, इज इट जस्ट बिकॉज दोनों अक्वेंटेड नहीं है या कोई थर्ड पर्सन रीजन? थर्ड पर्सन कैन बी एनीबडी, नॉट समवन आउट ऑफ देम, बट कैन बी फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो। कभी लाइक हस्बैंड के पेरेंट्स बहुत इंटरफियरिंग होते हैं, कभी वाइफ के पेरेंट्स बहुत इंटरफियरिंग होते हैं, या उनके सिबलिंग्स इंटरफियरिंग होते हैं, या उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, फैमिली बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करती है उनके चाइल्ड का। जैसे हस्बैंड की फैमिली बहुत ज़्यादा डिमांड करती है उनका टाइम, तो वाइफ को वो टाइम ही नहीं दे पाता, टाइम स्पेंडिंग ही नहीं हो पाता है। तो दैट हैज़ टू चेंज, दैट हस्बैंड हैज़ टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम द फैमिली एंड गिव टाइम टू वाइफ। ओके। लाइक ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अबैंडन कर दो, ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करो, पर वाइफ को भी एक प्रायोरिटी दो पहले। पेरेंट्स का सब काम करो, एंड पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी उसकी खुद की भी एक फैमिली है, उसकी शादी हो गई है, उसकी हाँ, खुद की पेरेंट्स भी, तो चलो एक बारी के लिए समझ भी जाएंगे, ऑब्वियसली हाँ, मैरिज इज मोर इम्पोर्टेंट, बट करेक्ट। ऑन आवर पर्सनल फ्रंट हम क्या-क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि लाइक तो सबसे पहले ये समझो कि आपके इमोशंस कौन से आ रहे हैं उसमें, ओके। और आपके इमोशंस वो पर्सन से आ रहे हैं या वो पास्ट से आ रहे हैं। अगर वो इमोशंस आपके पास्ट से आ रहे हैं, तो वो इमोशंस को पहले रिजॉल्व करो, फिर देखो आपका रिलेशनशिप कौन से स्टेज पे है। ओके। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, हमारे पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप रहा है विच वाज अनसक्सेसफुल, या हम ये देख के बड़े हुए कि हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप था जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था और दूसरा पर्सन बहुत डोमिनेटिंग नहीं था, बहुत गिवन कर गिवन दे। था, हाँ। तो अगर ये हमने देखा है, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मैरिज से भी, जो कि काफ़ी बार फेलियर का कारण बन जाता है। ओके। तो उसको रिपेयर करने के लिए ये समझो कि ये कारण आपके मैरिज में नहीं चलने वाला है। सुनो, सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है ना, सुनो। अभी गुस्सा आता है हमें, फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है? तो हम गुस्सा कब करते हैं जनरली? आई एम आस्किंग यू कि हम गुस्सा कब करते हैं जनरली? लाइक कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है या करेक्ट, हाँ। दैट्स द क्रक्स। सामने एक फाइट, एक गुस्सा या एक झगड़े का रीज़न ये होता है कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैं आपका इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही मुझे। करेक्ट। हाँ। हम चिल्लाते तब है क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले के कानों तक आवाज़ नहीं पड़ रही है। सो वो शाउटिंग होता है। एंड जितना हो सके उतना रिलेशनशिप ऑर्गेनिक रखो। हमें लगता है कि हम मैनिपुलेट नहीं करते, बट हमें कभी-कभार कुछ चीज़ें इतनी कन्विंसिंग में घुस जाता है कि नहीं, हम करते हैं, हमको करनी है, करते हैं, करते हैं, करते हैं। हम इतना फोर्स कर देते हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एक्चुअली डज़ नॉट वांट टू डू। ओके। टेक इट इनटू कंसिडरेशन। मैरिज मतलब सब चीज़ साथ-साथ में करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें खुद भी कर लो, कुछ चीज़ें साथ में भी कर लो। दोनों को बैलेंस आउट करो। जब वो चीज़ें बैलेंस आउट होने लगेगी ना, योर मैरिज इज़ गोइंग टू वर्क। सो आई विल टेल यू, आई नो अ कपल, उनका मैरिज ब्यूटीफुल मैरिज थे हैव। हस्बैंड एंड वाइफ, उन लोग की 4 साल की 4 ट्रिप्स फिक्स होती है। 2 सोलो ट्रिप्स और 2 कपल ट्रिप वो लोग करते हैं। ओके। They have a small child, तो वो couple trip is a family trip also. But husband and wife both go on the solo trip as well. उनका ये है मानना है कि they both love traveling, so going on trips is something that they both want to do. और उनका ये मानना है कि हम खुद के साथ भी वो उतना टाइम स्पेंड करते हैं जब हम सोलो ट्रिप पे जाते हैं, और वो ज़रूरी है एक मैरिज के लिए। वरना एक पॉइंट के बाद हम एक चीज़ फील करते हैं, वो है कंपैशन फटीग। कंपैशन फटीग क्या होता है ना, जब हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशन के साथ रहते हैं, कोई भी रिलेशन ले लो आप, वो इतना ज़्यादा कंपैशन के रखते हैं, और उसमें फिर हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। फिर हम थक जाते, एक पॉइंट के बाद हमें थकान महसूस होती है। 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 10 साल करोगे, 20 साल करोगे, उसके बाद आपकी कैपेसिटी कभी तो कम होगी, कभी तो ख़त्म होगी, तो आप टायर्ड हो जाओगे। तो वो टायर्डनेस नहीं आनी चाहिए, उसके लिए वहाँ पे ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी चाहिए, तो वो खुद
take the break, go out, spend time with your own self. That is one thing that they can do. And communication, like हमने डिस्कस किया है, वो एक इम्पोर्टेंट की है. और कम्युनिकेशन के अलावा सी टू इट कि थर्ड पर्सन जो भी आ रहा है दो लोगों के बीच में, वो पर्सन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. कोई भी हो, बी इट पेरेंट्स, बी इट एनीबडी. यस, यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू लव देम अ लॉट. Doesn't mean that spending time with your wife you love them any less or they are not your priority anymore. Okay. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हो जाती है रिलेशनशिप में, बेड, नेवर गो टू बेड विद द फाइट. झगड़ा खत्म करके सोने जाओ. कभी भी झगड़े पे मत सोना. झगड़े पे सोओगे, आपका आज का दिन गया, कल का दिन और हफ्ते भी वैसे निकल जाएंगे. आपके अंदर दूरियां बढ़ती जाएगी. जो भी झगड़ा है सोने से पहले हमेशा खत्म करके जाओ. गो सॉर्टेड व्हेन यू आर गोइंग टू बेड. वो रिलेशनशिप रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है. ऑलराइट, ठीक है. तो अभी अपना लास्ट एक रैपिड फायर राउंड है. 4-5 क्वेश्चंस है जो आप एक एक लाइन में और एनी हाउ यू वांट टू आंसर. Okay, so let's go. First is what is the top reason why people get married? Because marriage is the highest form of commitment when they are in love, or in an arranged marriage, if you see, they need companionship. Anywhere at any point they just need companionship. Okay. So that's why they get married. And marriage से कोई better companionship है नहीं. Long lasted committed companionship. But not security or anything, stability. Security, stability, it comes with it, and if it comes with it, it's good. Sometimes it doesn't come with it, but that's still fine. That companionship is there. All right. Okay. Do you think marriages will survive in the next 50 to 100 years? Yes, they will, because people will need companions. Okay, but companionship तो तुम बिना marriage के भी कर सकते हो, but वो highest form of commitment है. Live-in भी लोग बोलते हैं commitment है, but I don't think they believe in it so much. Live-in में still. But अगर love को importance ज़्यादा मिल गया, love is the topmost thing, तो फिर marriages का importance तो नहीं रहेगा, right? नहीं, अगर love topmost है तो जिससे तुम love कर रहे हो उसको highest commitment यही दे रहे हो ना कि अब marriage कर रहे हो, उनके साथ ही रहोगे. All right. उनके साथ you are settling down. Okay. Do marriages keep us in being good citizens? I would say 50-50 yes. So 50-50 जैसे अभी इसके साथ मेरी शादी हो गई है, मुझे इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, वरना सोसाइटी में क्या नाम रहेगा. सोसाइटी में हम लोग हस्बैंड वाइफ है, सो वी हैव टू कीप एज अ मैरिड कपल. अर्लियर क्या हम एक फैमिली का हिस्सा थे, आज भी हम वो फैमिली का हिस्सा है, बट मैरिज के बाद तुम्हें लोग इंडिविजुअली एज अ कपल देखने लगता है. सो यू हैव टू कीप योर बिहेवियर मोर इन चेक इन द सोसाइटी. सो वो भी हो जाता है. But somewhere it also becomes a part that you get a lot of freedom to do what you want to do and you don't care about the people. So it's 50-50. Okay. How many people are faking their marriages? Like, can there be a percentage to that? Faking like love नहीं है, but still marriage कुछ ना कुछ reason की वजह से marriage में है, but there is no love, there is no nothing else. 70%. 70%? Okay. Okay. So, can cheating keep a relationship healthy? Cheating cannot keep a relationship healthy. Is cheating a way of telling your partner that we need to break up or get divorced? Cheating is, yes, it's one of the major highlight way that the person has to accept, but it's not the only way, I would say, to tell your partner that we want to break up or divorce. Okay. So, लोगों की cheating story सुनने में इतना मजा क्यों आता है? ड्रामा, वी आर इंडियन पीपल, ड्रामा बहुत अच्छा लगता है हमको. Okay. तो जितना ड्रामेटिक होगा उतना चीटिंग स्टोरी सुनी, फिर उसमें रिवेंज स्टोरी आ गई, तो वो सुनने में बड़ा मजा आता है. Okay. अच्छा, चीटिंग का टॉप मोस्ट रीजन क्या है? You have fallen out of love. You don't feel emotionally for the other person, or you have taken the other person for granted. All right. I think that's about it.
एक फादर और सन का रिलेशनशिप डिफरेंट क्यों होता है एक मदर और एक सन के रिलेशनशिप से? फादर को हम हमेशा देखते हैं द पर्सन हु डजंट एक्सप्रेस, द स्ट्रॉन्ग, द वन हु इज पिलर ऑफ द फैमिली, द होल्डिंग, द माउंटेन ऑफ द फैमिली। तो हम उनको देखते हैं कि ही डजंट एक्सप्रेस इमोशनली, कि दोनों में लड़ाई होती है, भाई बहन में होती है, भाई भाई में होती है, तो वो सब का जो जेलेसी है वो कैसे एकदम से आ जाती है रिलेशनशिप में? वो लोग को लगता है कि दे बोथ आर ऑन सेम लेवल, अदर पर्सन कैन नॉट कंट्रोल। जैसे कि कभी कोई फेवर्स होते हैं, जैसे कोई रिलेटिव, कोई चाचा या मामा ने कोई तुम पे फेवर किया, कोई कॉलेज में तुमको एडमिशन दिलाया, उनको फिर ये अथॉरिटी मिल जाती है कि मैंने उसकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज करी है तो आई हैव अ कंट्रोल ओवर हिम। अगर तुमने किसी से फेवर लिया है तो वो फेवर एकदम ट्रांजैक्शनल रखो। यू हैव टेकन फ्रॉम समवन, गिव इट, एंड वो फेवर को वहीं खत्म करो एंड बता दो कि भाई ये फेवर यहाँ पे खत्म। कोई तुम्हारे साथ में हमेशा चलने को रेडी है, कहीं भी घूमने जाना है, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू, तो वो तुम्हें एक सपोर्ट हो जाता है कि यार चल कोई साथ में है। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है ना विच इज नॉट कंप्लीटली ऑन गिव एंड टेक, इट्स अ लॉट अबाउट गिव एंड मे बी वेरी लेस अबाउट टेक। अगर मैं अपनी तरफ से किसी को पैसे दे रहा हूँ एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दैट इन रिटर्न, अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, बट अगर मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ कि मेरे को इस टाइम पे पैसे चाहिए है, लाइक 3 months और 6 months, और फिर वो नहीं दे रहा है, तो फिर मुझे कैसे फील करना चाहिए? लाइक या तो मैंने पैसे दिए हैं अपनी खुशी से ही दिए है ना, लाइक इट्स नॉट कि मेरे को वापस चाहिए, या वापस ऑब्वियसली चाहिए, बट स्टिल वो एक रिलेशन खराब होने वाले स्टेज पे आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे ना यू हैव टू स्टार्ट बीइंग वेरी क्लियर विद योर फ्रेंड्स कि भाई यार देख पैसे दिए हैं मैंने, आई नो तेरे को जरूरत थी, बट यू नीड टू स्टार्ट गिविंग, गेट बैक। चल पूरा नहीं दे, थोड़ा थोड़ा दे दे, बट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग।